Namaskar. We welcome you to our important lecture series on comparative world literatures. Today's speaker is the coordinator of the program, Dr. Paramita Das. She has been deeply engaged in her research in translation studies, Hindi literature, and comparative world literatures and Indian knowledge systems. Today she is going to talk about a very important issue, Indian knowledge systems as a part of world literature. And in today's lecture, we have discussed that she would be taking some important issues, debates, and textual interpretations on a few research questions vis-a-vis Indian knowledge systems and world literatures. The first point that she would talk about is how can Indian knowledge systems, which we say like IKS, how can IKS disrupt the epistemic hierarchy of comparative world literature, where Western modernity often remains the unmarked theoretical norm against which non-Western knowledge is interpreted. This is an important question when we design the syllabi in various universities on comparative world literatures. This automatically comes up. What would be the theoretical interpretation and what kind of texts should be introduced? So she would be emphasizing that. And then how can comparative world literature develop a genuinely pluriversal methodology in which IKS is not simply an object of comparison but rather a source of comparative theory itself? I keep thinking about it when I write my research papers or the course material on Indian knowledge systems. For example, now we are introducing MA in various subjects, MA programs in various subjects, and MA in Hindu studies and MA in Indian knowledge systems are two of those important upcoming MA programs for us. And also we are developing one MA in comparative world literatures. So these issues automatically come up for us when we are discussing with our experts, preparing the draft syllabus, and we are heading towards our board of studies meetings in very near future. The next point that we would discuss today is what happens when the very category of literature, when IKS brings oral, performative, ecological, ritual, philosophical, and embodied forms of knowledge into comparative literary discourses. What happens to those? When oral literatures become a part of comparative literatures, how would we interpret them? Is one important question that we would address today. Then next, can the comparative method move from comparison between cultures to a dialogue, encounter across epistemologies without collapsing differences into equivalence? This is a very, very critical debate that we have to address. How do you think that IKS can challenge the colonial genealogy of the literary canon and compel comparative world literature to rethink who produces knowledge, whose texts constitute theory, and whose epistemologies become canonical? There is a big debate in literature departments on canonical and non-canonical studies. How do we address those? Will also be a part of today's discussion. Can concepts emerging from Indian aesthetics and philosophical traditions such as ras, dhvani, vakrukti, and auchitya function as comparative critical methodologies rather than merely indigenous counterparts of Western literary theory? This also will be a part of discussion for today. How can comparative world literature negotiate the tension between recovering IKS and critically interrogating the caste, gender, and power structures historically embedded within the knowledge traditions? Will also be one of the research points for today. Does the integration of IKS into comparative world literature constitute epistemic decolonization?
or can it become another form of institutional appropriation and canonization? Well, appropriation is a term that we have to actually think about. We appropriate texts, we appropriate ideas according to our convenience. Then another point can be, can IKS enable comparative world literature to move from a comparative taxonomy of cultures towards an ethics of epistemic reciprocity, where no single knowledge system monopolizes the production of literary meanings? Monopolies have been happening in our teaching methods, in our classrooms, in our literatures, in our literature reviews, in our interpretations. Don't you think that it's time that we become more flexible and more inclusive rather than being a part of that kind of monopoly? So today's lecture is going to be important. Once again, I congratulate Dr. Paramita Das for thinking about delivering this lecture and making it a part of our Comparative World Literatures lecture series. We welcome you all. Thank you. विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति प्रोफेसर नंदिनी साहू मैडम का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने तुलनात्मक विश्व साहित्य व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत मुझे अपने विचार प्रस्तुत करने का ये सुअवसर प्रदान किया। इस अवसर पर उपस्थित समस्त आदरणीय प्राध्यापकगण, विद्यार्थियों एवं साहित्य प्रेमियों का भी मैं सादर अभिनंदन एवं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आज मैं जिस विषय पर आप सभी के समक्ष अपने विचार रखने जा रही हूँ, वह हमारी बौद्धिक परंपरा, साहित्यिक चेतना और वैश्विक दृष्टि, इन तीनों को एक साथ जोड़ता है। मेरे व्याख्यान का विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा और तुलनात्मक विश्व साहित्य। भारतीय ज्ञान परंपरा केवल हमारे अतीत की धरोहर नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी जीवंत ज्ञान दृष्टि है जो मनुष्य, समाज, प्रकृति, संस्कृति और समस्त सृष्टि के पारस्परिक संबंधों को समझने का मार्ग प्रशस्त करती है। दूसरी ओर तुलनात्मक विश्व साहित्य विभिन्न भाषाओं, साहित्यिक परंपराओं और सभ्यताओं के बीच संवाद स्थापित करते हुए हमें ये समझने का अवसर प्रदान करता है कि मानव अनुभव भले ही विविध रूपों में व्यक्त हुआ हो, उसके मूल प्रश्न अनेक स्तरों पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी संबंध को आज के इस व्याख्यान में हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। यह विषय अपने आप में दो अत्यंत व्यापक क्षेत्रों को एक दूसरे के समीप लाता है। पहला है भारतीय ज्ञान परंपरा, जो भारत की दीर्घकालीन बौद्धिक, दार्शनिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, आध्यात्मिक, कलात्मक, लोक और सामाजिक परंपराओं का समेकित ज्ञान संसार है। दूसरा है तुलनात्मक विश्व साहित्य, जिसका उद्देश्य विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों, सभ्यताओं, साहित्यिक परंपराओं के मध्य संवाद, साम्य, वैषम्य और अंतर संबंधों को समझना है। इन दोनों को एक साथ रखने पर हमारे सामने एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या हम विश्व साहित्य को केवल यूरोपीय अथवा आधुनिक पाश्चात्य साहित्यिक अवधारणाओं के माध्यम से समझ सकते हैं, अथवा भारत सहित एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और विश्व की अन्य सभ्यताओं की अपनी ज्ञान दृष्टियां भी विश्व साहित्य को समझने की एक या समझने की नई पद्धतियां प्रदान कर सकती हैं। मेरे विचार में भारतीय ज्ञान परंपरा इसी दूसरे मार्ग का उद्घाटन करती है। भारतीय ज्ञान परंपरा हमें ये बताती है कि ज्ञान केवल तथ्य संचय नहीं है। ज्ञान
केवल सूचना नहीं है, ज्ञान केवल जीवनोपार्जन का साधन भी नहीं है। ज्ञान मनुष्य को स्वयं से, समाज से, प्रकृति से, इतिहास से और व्यापक सृष्टि से जोड़ने वाली प्रक्रिया है। इसी प्रकार तुलनात्मक विश्व साहित्य केवल दो कवियों, दो कथाकारों, दो ग्रंथों या दो साहित्यिक परंपराओं में समानता और भिन्नता खोजने का अभ्यास मात्र नहीं है। वो मानव सभ्यता की अनेक दृष्टियों के बीच संवाद स्थापित करने की एक गंभीर बौद्धिक प्रक्रिया है। इस दृष्टि से भारतीय ज्ञान परंपरा और तुलनात्मक विश्व साहित्य का संबंध अत्यंत स्वाभाविक है। सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि भारतीय ज्ञान परंपरा से हमारा अभिप्राय क्या है। भारतीय ज्ञान परंपरा को केवल प्राचीन ग्रंथों की सूची समझ लेना उचित नहीं होगा। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध और जैन ग्रंथ निश्चित रूप से इसके अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत हैं, किंतु भारतीय ज्ञान परंपरा का विस्तार इससे कहीं अधिक है। इसमें भारतीय दर्शन की विविध धाराएं आती हैं। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत के साथ साथ बौद्ध, जैन और लोकायत चिंतन भी इसकी बौद्धिक विविधता का हिस्सा है। इसमें आयुर्वेद है, योग है, ज्योतिष और खगोल संबंधी चिंतन है, गणित है, वास्तु है, शिल्प है, संगीत है, नाट्य है, व्याकरण है, भाषा दर्शन है, काव्य शास्त्र है, लोक कला है, लोक कथा है, कृषिजन्य ज्ञान है, वनस्पति संबंधी ज्ञान है और अनेक समुदायों की मौखिक तथा देशज ज्ञान परंपराएं भी है। अर्थात भारतीय ज्ञान परंपरा ज्ञान की किसी एक धारा का नाम नहीं है, यह अनेक ज्ञान स्रोतों के सह अस्तित्व और संवाद का नाम है। भारतीय चिंतन में ज्ञान के साथ जीवन का गहरा संबंध रहा है। प्रसिद्ध उक्ति है, सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात वही विद्या है जो मनुष्य को मुक्ति की ओर ले जाए। यहाँ मुक्ति का अर्थ केवल आध्यात्मिक मुक्ति तक सीमित नहीं है। इसे अज्ञान से मुक्ति, संकीर्णता से मुक्ति, भय से मुक्ति, असत्य से मुक्ति और मनुष्य की विवेकहीनता से मुक्ति के अर्थ में भी समझा जा सकता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्ञान का उद्देश्य मनुष्य के भीतर विवेक का विकास करना है। इसीलिए यहाँ ज्ञान, आचरण और अनुभव परस्पर जुड़े हुए हैं। हम कितना जानते हैं ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, किंतु उससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमारे ज्ञान ने हमें कैसा मनुष्य बनाया है। आज के समय में ये प्रश्न और अधिक प्रासंगिक हो जाता है। हमारे पास सूचनाओं का अपार भंडार है, किंतु क्या सूचना की वृद्धि के साथ विवेक भी बढ़ा है? हमारे पास प्रौद्योगिकी की अद्भुत उपलब्धियां हैं, किंतु क्या मनुष्य और प्रकृति का संबंध अधिक संतुलित हुआ है? हमारे पास संचार के असंख्य माध्यम हैं, किंतु क्या समाज में संवाद भी उसी अनुपात में बढ़ा है? भारतीय ज्ञान परंपरा इन प्रश्नों को केवल बाहरी उपलब्धियों की दृष्टि से नहीं, बल्कि जीवन मूल्यों की दृष्टि से देखती है। असल में भारतीय ज्ञान परंपरा की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता उसकी बहुलता है। भारत में विचार की कोई एक ही धारा नहीं रही,
यहाँ वेदांत है तो बौद्ध दर्शन भी है, यहाँ सांख्य है तो न्याय भी है, यहाँ अद्वैत है, द्वैत है, विशिष्टाद्वैत भी। अर्थात भारतीय बौद्धिक परंपरा की वास्तविक पहचान एक रूपता में नहीं बल्कि वैचारिक बहुलता में है। इसी या फिर इसलिए ऋग्वेद का प्रसिद्ध सूत्र अत्यंत यहाँ महत्वपूर्ण लगता है, एकं सद विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात सत्य एक हो सकता है किंतु ज्ञानी उसे अनेक रूपों में व्यक्त करते हैं। यह सूत्र तुलनात्मक विश्व साहित्य की मूल भावना के भी अत्यंत निकट है। तुलनात्मक विश्व साहित्य ये नहीं कहता कि सभी संस्कृतियां एक जैसी हैं, वो ये भी नहीं कहता कि सभी साहित्यिक परंपराएं एक ही निष्कर्ष पर पहुंचती हैं। वो ये कहता है कि विभिन्न संस्कृतियों में मनुष्य ने समान प्रश्नों के भिन्न भिन्न उत्तर खोजे हैं। यही भिन्नता तुलनात्मक अध्ययन को सार्थक बनाती है। अब हम विश्व साहित्य की ओर अगर जाएं, आधुनिक साहित्यिक आलोचना में विश्व साहित्य की अवधारणा को प्राय जर्मन कवि और चिंतक गोएथे के विचारों से जोड़ा जाता है। उन्होंने राष्ट्रीय साहित्य की सीमाओं से आगे बढ़ते हुए साहित्यिक आदान प्रदान की आवश्यकता पर बल दिया। परंतु यदि हम साहित्य के इतिहास को व्यापक दृष्टि से देखें तो पाएंगे कि साहित्य का अंतरराष्ट्रीय और अंतर सभ्यतागत संचार बहुत प्राचीन है। कथाएं सीमाओं में नहीं रहती, मिथक सीमाओं में नहीं रहते, कविताएं सीमाओं में नहीं रहती, दार्शनिक विचार भी सीमाओं में नहीं रहते। एक भाषा में जन्मा आख्यान दूसरी भाषा में पहुंचकर नया रूप ग्रहण करता है। एक संस्कृति का प्रतीक दूसरी संस्कृति में नया अर्थ प्राप्त करता है। एक धार्मिक या दार्शनिक कथा दूसरे समाज में लोक कथा का रूप ले सकती है। इसलिए विश्व साहित्य को केवल आधुनिक युग की संकल्पना समझना पर्याप्त नहीं है। भारत का साहित्य या भारत का साहित्यिक इतिहास स्वयं इस प्रकार के व्यापक सांस्कृतिक आदान प्रदान का साक्षी रहा है। बौद्ध साहित्य भारत से मध्य एशिया, चीन, तिब्बत, कोरिया, जापान और दक्षिण पूर्व एशिया तक गया। रामकथा ने भारत की सीमाओं से बाहर जाकर अनेक देशों में नए रूप ग्रहण किए। पंचतंत्र की कथाएं भारत से फारसी और अरबी भाषाओं में या फिर अरबी भाषाओं के माध्यम से यूरोप तक पहुंची। संस्कृत, पाली, प्राकृत, तमिल, फारसी, अरबी और आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच लगातार वैचारिक और साहित्यिक आदान प्रदान हुआ। अतः विश्व साहित्य को हम साहित्यिक संचरण, संवाद और पुनर्सृजन की प्रक्रिया के रूप में समझ सकते हैं। तुलनात्मक साहित्य के सामान्य अर्थ में दो या अधिक भाषाओं, रचनाकारों, विधाओं, साहित्यिक परंपराओं और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन आता है। किंतु गंभीर तुलनात्मक अध्ययन केवल समानता खोजने तक सीमित नहीं होता। उदाहरण के लिए यदि हम कालिदास और शेक्सपियर का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो केवल ये देखना पर्याप्त नहीं कि दोनों महान नाटककार थे। हमें पूछना होगा दोनों की प्रकृति दृष्टि क्या है, प्रेम और मानवीय संबंधों की उनकी अवधारणा कैसी है, नाट्य में भाव और चरित्र को वे किस प्रकार निर्मित करते हैं, उनकी सभ्यताओं का दर्शन उनकी रचनाओं को किस प्रकार प्रभावित करता है। दर्शक अथवा पाठक
के अनुभव को दोनों साहित्यिक परंपराएं किस प्रकार देखती हैं। यह तुलनात्मक दृष्टि साहित्य से आगे बढ़कर ज्ञान प्रणालियों की तुलना तक पहुंचती है और यही भारतीय ज्ञान परंपरा की वास्तविक भूमिका प्रारंभ होती है। विश्व साहित्य के अध्ययन में लंबे समय तक पाश्चात्य साहित्यिक विद्वानों या पाश्चात्य साहित्यिक सिद्धांतों का प्रभाव रहा है। प्लेटो, अरस्तु, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषण, संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद, फिर उत्तर औपनिवेशिक आलोचना और आधुनिक सांस्कृतिक सिद्धांतों ने साहित्य की व्याख्या के अनेक महत्वपूर्ण उपकरण दिए। इनका अध्ययन निस्संदेह आवश्यक है, किंतु भारत की अपनी अत्यंत समृद्ध साहित्य शास्त्रीय परंपरा रही है। जैसे भरत मुनि, भामा, दंडी, वामन, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, कुंतक, क्षेमेंद्र, मम्मट और विश्वनाथ जैसे आचार्यों ने कविता, नाटक, सौंदर्य, भाषा, अर्थ, शैली, भाव और पाठकीय अनुभव पर गहन चिंतन किया। इसलिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि क्या हम विश्व साहित्य की रचनाओं को भारतीय काव्य शास्त्रीय अवधारणाओं के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं? उत्तर है निश्चय। ऐसा करने से न केवल भारतीय काव्य शास्त्र का समकालीन महत्व स्पष्ट होता है, बल्कि विश्व साहित्य की नई व्याख्याएं भी संभव होती है। अब भारतीय काव्य शास्त्र का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत रस सिद्धांत माना गया है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कहा गया है, विभाव अनुभव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभव और व्यभिचारी के भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यह रस केवल साधारण भाव नहीं है, रस साहित्य या नाट्य के माध्यम से उत्पन्न होने वाला परिष्कृत सौंदर्यानुभव है। पाठक अथवा दर्शक किसी पात्र के निजी दुख को केवल उसी पात्र का दुख मानकर नहीं देखता, वह उस अनुभव के माध्यम से एक सार्वजनीय मानवीय संवेदना का अनुभव करता है। यही रस की व्यापकता है। अब यदि हम शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक हैमलेट को देखें तो पाश्चात्य साहित्यिक चिंतन में उसे त्रासदी के रूप में पढ़ा जाता है। अरस्तु की दृष्टि से त्रासदी करुणा और भय के माध्यम से मनोभावों के परिशोधन की ओर ले जाती है, किंतु हैमलेट को भारतीय रस सिद्धांत की दृष्टि से पढ़ने पर करुण, भयानक, रौद्र और कहीं कहीं शांत रस की संभावनाएं दिखाई देती है। इसी प्रकार हम ग्रीक त्रासदी को भारतीय करुण रस की दृष्टि से पढ़ सकते हैं। दूसरी ओर महाभारत अथवा संस्कृत नाटकों को पाश्चात्य त्रासदी के सिद्धांतों के माध्यम से देख सकते हैं। यही वास्तविक तुलनात्मकता है। यहाँ एक सिद्धांत दूसरे को नकारता नहीं, बल्कि दोनों मिलकर साहित्य के अनुभव को अधिक व्यापक बनाते हैं। अब आनंदवर्धन की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि आनंदवर्धन का ध्वनि सिद्धांत भारतीय काव्य शास्त्र की एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ध्वन्यालोक में उन्होंने यह प्रतिपादित किया कि श्रेष्ठ काव्य का अर्थ केवल वह नहीं है जो शब्दों से प्रत्यक्ष रूप में कहा गया है। अनेक बार काव्य का वास्तविक सौंदर्य उस अर्थ में होता है जो सीधे
व्यक्त न होकर संकेतित होता है, यही ध्वनि है। यदि कविता में कवि केवल संध्या का वर्णन करता है तो हो सकता है कि वह केवल दिन के अंत का चित्र न हो, वह जीवन की संध्या हो सकती है, वह विरह की अनुभूति हो सकती है, स्मृति का क्षीण होता प्रकाश हो सकता है, अथवा किसी सभ्यता के अवसान का संकेत हो सकता है। यह निहितार्थ साहित्य की आत्मा बन जाता है। विश्व की अनेक आधुनिक कविताओं में भी संकेत, प्रतीक, बहुअर्थता का विशेष महत्व है। इसीलिए आनंदवर्धन का ध्वनि सिद्धांत आधुनिक कविता और विश्व साहित्य की व्याख्या में अत्यंत उपयोगी है। आगे कुंतक का वक्रोक्ति सिद्धांत भी तुलनात्मक अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वक्रोक्ति का आशय केवल टेढ़ी बात कहना नहीं है, काव्य में सामान्य कथन को विशिष्ट कलात्मक और चमत्कारपूर्ण ढंग से व्यक्त करना वक्रोक्ति का मूल है। एक सामान्य कथन है, मान लीजिए जैसे रात्रि हो गई है या रात्रि हो गई, लेकिन कवि कह सकता है आकाश में जैसे कि आकाश ने अंधेरे की चादर ओढ़ ली। दोनों कथनों में तथ्य एक है, किंतु दूसरे कथन में काव्यात्मकता है। यही भाषा का सौंदर्यात्मक विचलन है। आधुनिक साहित्यिक चिंतन में भी साहित्यिक भाषा की विशिष्टता पर बहुत विचार हुआ है। इसीलिए वक्रोक्ति सिद्धांत और आधुनिक शैली विज्ञान के बीच सार्थक संवाद संभव है। फिर जैसे क्षेमेंद्र ने औचित्य को काव्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना। औचित्य का अर्थ है कि पात्र, प्रसंग, भाषा, भाव, वातावरण और अभिव्यक्ति अपने संदर्भ के अनुरूप हो। किसी बालक की भाषा वृद्ध दार्शनिक जैसी हो तो वो अस्वाभाविक लगेगी। किसी प्रसंग या फिर किसी करुण प्रसंग में अनुचित हास्य आ जाए तो उसका प्रभाव नष्ट हो सकता है। अतः साहित्य का अर्थ उसके संदर्भ में बनता है। यही बात तुलनात्मक साहित्य पर भी लागू होती है। दो रचनाओं की तुलना करते समय उनके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। तुलना का उद्देश्य केवल समानता सिद्ध करना नहीं है। सार्थक तुलना समानता को पहचानते या पहचानती है और भिन्नता का सम्मान भी करती है। भारतीय ज्ञान परंपरा और विश्व साहित्य के संबंध को समझने के लिए रामायण अत्यंत महत्वपूर्ण एक उदाहरण है। रामायण केवल एक ग्रंथ नहीं है, वो एक विस्तृत कथा परंपरा है। वाल्मीकि रामायण इसका महत्वपूर्ण प्राचीन रूप है। इसके बाद राम कथा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रों, संस्कृतियों में पुनर्रचित होती रही। तुलसीदास का रामचरितमानस, तमिल में कंबन का रामावतारम, बंगाल में कृतिवासी रामायण, फिर बौद्ध दशरथ जातक और अनेक लोक रामायण इस परंपरा के हिस्से हैं। भारत से बाहर भी राम कथा अनेक देशों में पहुंची, जैसे कि थाईलैंड का रामाकियन, कंबोडिया की राम कथा परंपरा, इंडोनेशिया की रामायण परंपरा और दक्षिण पूर्व एशिया की विभिन्न प्रस्तुतियां इसका प्रमाण है। यहाँ तुलनात्मक विश्व साहित्य का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत भी सामने आता है कि कथा जब एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में जाती है तो वह केवल अनुदित नहीं होती, उसका पुनर्सृजन होता है। स्थानीय समाज उसे अपने अनुभवों, प्रतीकों, लोक विश्वासों और सौंदर्य बोध के अनुसार एक नया रूप देता है।
अतः रामायण विश्व साहित्य में कथा संचरण, सांस्कृतिक पुनर्रचना और साहित्यिक संवाद का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। फिर महाभारत को केवल युद्ध का आख्यान समझना, उसके अर्थ को सीमित करना होगा, क्योंकि महाभारत धर्म, सत्ता, राजनीति, नैतिकता, परिवार, न्याय, हिंसा, करुणा, दायित्व और मनुष्य की जटिलता का महान आख्यान है। ये बार बार प्रश्न करता है, धर्म क्या है, न्याय क्या है, कर्तव्य क्या है, युद्ध कब उचित है, सत्ता और नैतिकता का क्या संबंध है, व्यक्ति और परिवार के बीच संघर्ष होने पर किसे चुना जाए, राजधर्म और व्यक्तिगत नैतिकता में टकराव हो तो समाधान क्या हो। ये केवल भारतीय प्रश्न नहीं है, विश्व साहित्य के अनेक महाकाव्यों और त्रासदियों में यही मानवीय प्रश्न उपस्थित होते हैं। हम महाभारत और इलियड का तुलनात्मक अध्ययन भी देखे हैं और अध्ययन कर सकते हैं। दोनों में युद्ध है, दोनों में वीरता है, दोनों में सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रश्न है, दोनों में मृत्यु है, लेकिन दोनों सभ्यताओं की नैतिक और दार्शनिक संरचना भिन्न है। यही भिन्नता तुलनात्मक अध्ययन की वास्तविक भूमि बनती है। महाभारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंश है, या फिर जिसे हम कह सकते हैं कि भगवत गीता में अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े हैं, युद्ध बाहर है, लेकिन उससे बड़ा संघर्ष उनके भीतर चल रहा है। उनके सामने अपने बंधु बांधव, गुरु और संबंधी हैं। वे प्रश्न करते हैं, मैं क्या करूं, कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, क्या युद्ध से हट जाना उचित है, क्या केवल परिणाम की चिंता के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए। इस प्रकार गीता का मूल प्रश्न मनुष्य की नैतिक दुविधा का प्रश्न है। विश्व साहित्य में भी अनेक पात्र इसी प्रकार की परिस्थितियों से गुजरते हैं। वे निर्णय, जिम्मेदारी, स्वतंत्रता, भय और नैतिक संकट से जूझते हैं। इसीलिए गीता को तुलनात्मक विश्व साहित्य में केवल धार्मिक ग्रंथ के रूप में नहीं, बल्कि मनुष्य की नैतिक चेतना और निर्णय संबंधी जटिलता के ग्रंथ के रूप में भी पढ़ा जा सकता है। वैसे ही उपनिषद भारतीय ज्ञान परंपरा के अत्यंत महत्वपूर्ण आधार हैं। वे केवल उत्तर नहीं देते, वे प्रश्न करना भी सिखाते हैं। मैं कौन हूँ, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, सत्य क्या है, चेतना क्या है, ब्रह्मांड और व्यक्ति के बीच क्या संबंध है। ये प्रश्न किसी एक संस्कृति का नहीं है। मृत्यु, अमरता, आत्मा, स्मृति और अस्तित्व के प्रश्न विश्व की लगभग सभी दार्शनिक और साहित्यिक परंपराओं में उपस्थित हैं। इसलिए उपनिषदों का तुलनात्मक अध्ययन विश्व के अस्तित्ववादी, आध्यात्मिक और दार्शनिक साहित्य के साथ किया जा सकता है। कहा जाए तो भारतीय चिंतन का प्रसिद्ध सूत्र है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात समस्त पृथ्वी एक परिवार है। विश्व साहित्य की मूल भावना भी इसी दिशा में हमें ले जाती है। विश्व साहित्य का उद्देश्य विश्व की सभी संस्कृतियों को एक रूप बना देना नहीं है। परिवार में भी सभी सदस्य एक जैसे नहीं होते, उनकी अपनी प्रकृति होती है, अपनी स्मृतियां होती है और अपने अनुभव होते हैं। फिर भी वे एक व्यापक संबंध में बंधे रहते हैं। इसी प्रकार विश्व साहित्य भाषाओं, जातीय स्मृतियों, इतिहासों और साहित्यिक परंपराओं की विविधता को बनाए रखते हुए उनके बीच संवाद स्थापित करता है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना विश्व साहित्य को एक नैतिक आधार भी प्रदान करती है। इस बात पर
ध्यान देना है कि भारतीय ज्ञान परंपरा का बहुत बड़ा भाग शास्त्रीय ग्रंथों में नहीं, लोक जीवन में सुरक्षित है। लोकगीतों में इतिहास है, लोक कथाओं में सामाजिक स्मृति है, कहावतों में जीवन अनुभव है, लोक नाट्यों में सामुदायिक चेतना है, कृषि संबंधी परंपराओं में मौसम, बीज और मिट्टी का ज्ञान है। इसके साथ साथ जनजातीय समुदायों के पास वन, औषधीय वनस्पति और जैव विविधता का विशिष्ट ज्ञान है। इसलिए ज्ञान को केवल लिखित ग्रंथों में खोजने से भारतीय ज्ञान परंपरा का एक बड़ा हिस्सा हमारे सामने नहीं आएगा। विश्व की अनेक संस्कृतियों में भी यही स्थिति है। अफ्रीकी मौखिक परंपराएं, मूल अमेरिकी समुदायों की कथाएं, ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी समुदायों के आख्यान और भारत की लोक तथा जनजातीय परंपराएं एक व्यापक तुलनात्मक अध्ययन की संभावनाएं प्रस्तुत करती हैं। यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। लोक और देश या लोक और देशज ज्ञान किसी शास्त्रीय ज्ञान की निम्नतर श्रेणी नहीं है। वे समाज के दीर्घ अनुभव से निर्मित ज्ञान के विशिष्ट रूप हैं। अब आधुनिक शिक्षा में हम लिखित पाठ को अधिक प्रामाणिक मानने के अभ्यस्त हो गए हैं, लेकिन मानव सभ्यता के इतिहास का बहुत बड़ा भाग ऐसा रहा है जब ज्ञान लिखित नहीं था। वह स्मृति और वाणी के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होता था। भारतीय वैदिक परंपरा इसका अद्भुत उदाहरण है। वेदों के पाठ को अत्यंत अनुशासित मौखिक पद्धतियों से सुरक्षित रखा गया। लोक गीतों, लोक गाथाओं और लोक कथाओं में भी यही प्रक्रिया दिखाई देती है। इसीलिए मौखिक परंपरा हमें ये समझाती है कि स्मृति भी अभिलेखागार है, समुदाय भी ज्ञान का भंडार है और मनुष्य स्वयं ज्ञान का जीवित वाहक हो सकता है। यह दृष्टि तुलनात्मक विश्व साहित्य में मौखिक परंपराओं को एक नया महत्व देती है। ये सत्य है कि विश्व साहित्य की चर्चा अनुवाद के बिना अधूरी है। यदि अनुवाद न हो तो किसी भाषा का साहित्यिक या साहित्य दूसरी भाषा के पाठकों तक कैसे पहुंचेगा? किंतु अनुवाद केवल शब्दों को बदल देना मात्र नहीं है। अनुवाद अर्थ, संस्कृति और ज्ञान की पुनर्रचना भी है। जब बौद्ध ग्रंथ भारत से चीन और तिब्बत गए थे, तो वे नई भाषिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों में नए अर्थ ग्रहण करते थे। अब उपनिषद यूरोपीय भाषाओं में पहुंचते हैं, तो या जब उपनिषद यूरोपीय भाषाओं में जब पहुंचे थे, तब वे यूरोपीय चिंतन के साथ संवाद में आते हैं। जब शेक्सपियर हिंदी, बंगाली या मराठी में अनुदित होते हैं, तो उनके पात्र भारतीय भाषिक अनुभव में प्रवेश करते हैं। जब कबीर की कविता अंग्रेजी या अन्य भाषाओं में जाती है, तब उसके सामने नए पाठक होते हैं। इस प्रकार अनुवाद केवल भाषा का स्थानांतरण नहीं, बल्कि ज्ञान का पुनर्सृजन और संस्कृतियों के बीच सेतु निर्माण भी है। जैसे पंचतंत्र विश्व साहित्य में भारतीय कथा परंपरा के प्रभाव का अत्यंत उल्लेखनीय उदाहरण है। पंचतंत्र की कथाएं भारत से बाहर गई, उनका पहलवी में रूपांतरण हुआ, फिर अरबी परंपरा में वे कलीला व दिमना के रूप में विख्यात हुई। इसके बाद वे अनेक यूरोपीय भाषाओं तक पहुंची। इस यात्रा में कथा का स्वरूप भी बदलता रहा। स्थानीय समाजों ने उन्हें अपने परिवेश के अनुसार पुनः रूपायित किया। इससे हमें ये समझने में सहायता मिलती है कि विश्व साहित्य स्थिर वस्तु नहीं है, वह निरंतर गतिशील है।
कथा यात्रा करती है। यात्रा के साथ उसका अर्थ बदलता है और हर नई संस्कृति उसे अपने ढंग से ग्रहण करती है। इसी प्रकार भारतीय मध्यकालीन साहित्य में कबीर का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। कबीर को केवल भक्ति काव्य तक सीमित करना उचित नहीं होगा। वे मानवता, आध्यात्मिकता और सामाजिक विवेक के कवि हैं। वे धार्मिक आडंबर का विरोध करते हैं। वे जातिगत विभाजन पर प्रश्न उठाते हैं। वे बाह्याचार के स्थान पर आंतरिक सत्य को महत्व देते हैं। कबीर का ये स्वर विश्व की विभिन्न रहस्यवादी और मानवतावादी परंपराओं से संवाद की संभावना प्रस्तुत करता है। कबीर और रूमी, कबीर और सूफी कवियों, कबीर और विभिन्न रहस्यवादी परंपराओं के बीच तुलनात्मक अध्ययन हो सकता है। यहाँ उद्देश्य उन्हें एक जैसा सिद्ध करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि विभिन्न संस्कृतियों ने मनुष्य की आंतरिक अनुभूति को किन किन रूपों में व्यक्त किया। आगे देखें तो भारतीय संदर्भ में विश्व साहित्य की चर्चा रविंद्रनाथ ठाकुर के बिना पूर्ण नहीं हो सकती। गुरु रविंद्रनाथ स्वयं भारतीय और विश्व साहित्य के बीच सेतु थे। उनकी रचनाओं में उपनिषदिक चेतना, बंगाल की लोक परंपरा, बाउल जीवन दृष्टि, प्रकृति, प्रेम और विश्व मानवता का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। उनका साहित्य भारतीयता को संकीर्ण राष्ट्रीयता में सीमित नहीं करता। वे मनुष्य की स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और सार्वभौमिक मानवीय संबंधों पर बल देते हैं। उनकी विश्व दृष्टि में भारत और विश्व विरोधी ध्रुव नहीं है। भारतीयता की गहरी जड़ों से वे विश्व मानवता की ओर जाते हैं। ये दृष्टि भारतीय ज्ञान परंपरा और तुलनात्मक विश्व साहित्य के बीच संबंध को समझने में अत्यंत उपयोगी है। वैसे ही प्रेमचंद का साहित्य भी तुलनात्मक अध्ययन की अनेक संभावनाएं प्रस्तुत करता है। उनके यहाँ किसान है, श्रमिक है, स्त्री है, गरीब है, दलित है और सामाजिक रूप से वंचित मनुष्य है। वे सत्ता, शोषण, आर्थिक विषमता और सामाजिक अन्याय के प्रश्न उठाते हैं। प्रेमचंद का तुलनात्मक अध्ययन रूसी यथार्थवादी साहित्य, अफ्रीकी साहित्य, एशियाई साहित्य और लैटिन अमेरिकी सामाजिक साहित्य के संदर्भ में किया जा सकता है। यहाँ मूल प्रश्न ये होगा कि साहित्य समाज की विषमताओं को किस प्रकार व्यक्त करता है। हाशिए पर स्थित मनुष्य को भाषा कैसे देता है। क्या साहित्य सामाजिक चेतना का माध्यम बन सकता है। इसी दृष्टि से भारतीय साहित्य जो है कि वो और विश्व साहित्य का संवाद अत्यंत फलदायी हो सकता है। भारतीय ज्ञान परंपरा के अध्ययन में स्त्री की उपस्थिति पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। गार्गी और मैत्री भारतीय दार्शनिक परंपरा में स्त्री की बौद्धिक उपस्थिति के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। मध्यकाल में अक्का महादेवी, मीराबाई, लल्लेश्वरी जैसी रचनाकारों ने धार्मिक और सामाजिक सीमाओं को चुनौती देते हुए अपनी स्वतंत्रता या स्वतंत्र आध्यात्मिक चेतना व्यक्त की। आधुनिक साहित्य में स्त्री का अनुभव और भी व्यापक रूप में सामने आता है। इसलिए भारतीय स्त्री अनुभव का तुलनात्मक अध्ययन विश्व की स्त्रीवादी साहित्यिक परंपराओं के साथ किया जा सकता है, किंतु यहाँ सावधानी आवश्यक है। किसी एक समाज में विकसित अवधारणा को दूसरे समाज पर यांत्रिक रूप से लागू नहीं किया जाना चाहिए। हर रचना को उसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ में समझना आवश्यक है। यही तुलनात्मक साहित्य की गंभीर पद्धति है। अब आज के युग में भारतीय ज्ञान परंपरा की पर्यावरण दृष्टि का विशेष महत्व है। भारतीय परंपरा में प्रकृति को केवल उपभोग की वस्तु नहीं माना गया। पृथ्वी, जल, वन, पर्वत, नदियां, पशु, पक्षी और वनस्पतियां सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक संबंधों से जुड़े रहे हैं।
मनुष्य और पृथ्वी के संबंध की एक विशेष ज्ञान दृष्टि प्रस्तुत करता है। आज जब विश्व जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के संकट, प्रदूषण और पर्यावरणीय विनाश से जूझ रहा है, तब ऐसी दृष्टियों का पुनर्पाठ अत्यंत आवश्यक है। आधुनिक पर्यावरणीय साहित्य और भारतीय पारिस्थितिक ज्ञान के बीच तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। विश्व की देशज संस्कृतियां भी हमें यही बताती हैं कि मनुष्य प्रकृति से पृथक सत्ता नहीं है। आधुनिक औद्योगिक सभ्यता में लंबे समय तक प्रकृति को मनुष्य के उपयोग की वस्तु मानने की प्रवृत्ति रही है। इस दृष्टि को मानव केंद्रितता कहा जा सकता है। भारतीय ज्ञान परंपरा की अनेक धाराएं इस दृष्टि से भिन्न हैं। वे मनुष्य और प्रकृति को परस्पर संबद्ध मानती है। नदी केवल जल नहीं है, वृक्ष केवल लकड़ी नहीं है, भूमि केवल संपत्ति नहीं है। इन सभी के साथ मनुष्य का सांस्कृतिक, भावनात्मक और नैतिक संबंध है। विश्व साहित्य में आज पर्यावरणीय आलोचना, पारिस्थितिक साहित्य और जलवायु साहित्य के माध्यम से इसी संबंध पर गंभीर विचार किया जा रहा है और भारतीय ज्ञान परंपरा यहाँ एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक दृष्टि प्रदान करती है। भारतीय ज्ञान परंपरा को समझते समय औपनिवेशिक इतिहास पर विचार करना भी आवश्यक है। औपनिवेशिक शासन केवल राजनीतिक नियंत्रण नहीं था, उसमें ज्ञान की संस्थाओं, भाषा, शिक्षा और इतिहास लेखन को भी प्रभावित किया। एक समय ऐसी धारणा बनने लगी कि आधुनिक और वैज्ञानिक ज्ञान केवल पश्चिम की देन है, जबकि भारतीय ज्ञान परंपराएं अतीत और धर्म तक सीमित है। यह दृष्टि भारतीय ज्ञान की विविधता को अत्यधिक सीमित कर देती है, लेकिन इसका उत्तर ये नहीं है कि हम पश्चिमी ज्ञान को अस्वीकार कर दें। वास्तविक आवश्यकता ज्ञान के लोकतांत्रिक और बहुलतावादी पुनर्संतुलन की है। अरस्तु को पढ़ते हुए भरत को भी पढ़ें, पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र के साथ रस सिद्धांत को भी समझें, आधुनिक भाषा विज्ञान के साथ पाणिनि और भर्तृहरि की परंपरा को भी देखें। यही तुलनात्मक ज्ञान की सही दिशा होगी। ये कहा जा सकता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में भाषा पर अत्यंत गहन चिंतन हुआ है। पाणिनि की अष्टाध्यायी भाषा के व्यवस्थित और नियमबद्ध विश्लेषण का अप्रतिम उदाहरण है। पतंजलि और भर्तृहरि ने भाषा, अर्थ और वाणी पर गंभीर विचार किया। भर्तृहरि का भाषा दर्शन ये बताता है कि भाषा केवल संप्रेषण का साधन नहीं है, भाषा मनुष्य की चेतना और संसार बोध से गहराई से जुड़ी है। तुलनात्मक विश्व साहित्य में भाषा की ये दृष्टि विशेष महत्व रखती है, क्योंकि साहित्य का आधार ही भाषा है। एक भाषा के शब्द दूसरी भाषा में पूरी तरह उसी अर्थ के साथ नहीं पहुंचते। इसी कारण अनुवाद में सांस्कृतिक अर्थ, ध्वनि और संवेदना का प्रश्न उत्पन्न होता है। व्याख्या, मीमांसा और भारतीय परंपरा की बात करें तो किसी ग्रंथ का अर्थ कैसे निर्धारित किया जाए? क्या पाठ का केवल एक अर्थ होता है? क्या लेखक की इच्छा ही अंतिम अर्थ है? क्या पाठक भी अर्थ निर्माण में भाग लेता है? ये प्रश्न आधुनिक साहित्यिक सिद्धांत में अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं, लेकिन भारतीय परंपरा में भी व्याख्या की अत्यंत समृद्ध परंपरा रही है। मीमांसा, वेदांत, काव्यशास्त्र और भाष्य परंपरा में ग्रंथों के अर्थ पर निरंतर विमर्श होता रहा। एक ग्रंथ पर भाष्य लिखा गया, फिर भाष्य पर टीका लिखी गई, उसी टीका पर पुनः विचार हुआ। इसी प्रकार ज्ञान स्थिर नहीं रहा, वह संवाद के माध्यम से विकसित होता रहा और ये परंपरा तुलनात्मक व्याख्या मीमांसा के लिए अत्यंत उपयोगी माना जा सकता है। इतिहास, स्मृति, आख्यान पर बात करें तो भारतीय ज्ञान परंपरा या फिर भारतीय परंपरा में इतिहास की अवधारणा आधुनिक इतिहास लेखन से पूरी तरह समान नहीं है। रामायण और महाभारत को इतिहास कहा गया। यहाँ कथा, स्मृति, नैतिकता, समुदाय और सांस्कृतिक पहचान परस्पर जुड़े हुए हैं।
आधुनिक साहित्यिक विमर्श में स्मृति अध्ययन भी यही प्रश्न उठाता है। समाज अपने अतीत को कैसे याद करता है? कौन सी स्मृतियां सुरक्षित रहती हैं? कौन सी स्मृतियां विस्मृत कर दी जाती है? क्या कथा साहित्य या कथा इतिहास का विकल्प हो सकती है? क्या स्मृति हमेशा तथ्य के समान होती है? इन प्रश्नों के आधार पर भारतीय इतिहास परंपरा और आधुनिक स्मृति विमर्श के बीच सार्थक संवाद संभव है। असल में भारतीय ज्ञान परंपरा में साहित्य को केवल सौंदर्य की वस्तु नहीं माना गया, उसका संबंध मनुष्य की संवेदना और नैतिकता से भी है। भारतीय चिंतन में सत्य, शिव और सुंदर के मध्य संबंध पर लंबे समय से विचार हुआ है। इसका अर्थ ये नहीं कि साहित्य उपदेश बन जाए। वास्तविक साहित्य प्रश्न करता है, वो व्यवस्था की आलोचना भी करता है, वो मनुष्य की विडंबना को उजागर करता है, वो अन्याय को सामने लाता है, वो हमें दूसरे मनुष्य के दुख को अनुभव करने की क्षमता देता है। इस अर्थ में साहित्य नैतिक संवेदना का निर्माण करता है और विश्व साहित्य की महान रचनाओं में भी यही बात दिखाई देती है। अब प्रश्न ये उठता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा का वर्तमान समय में क्या महत्व है? क्या ये केवल अतीत का गौरव है? यदि हम इसे केवल अतीत में बंद कर दें तो इसका समकालीन महत्व समाप्त हो जाएगा। आज विश्व के सामने अनेक गंभीर चुनौतियां हैं, जैसे कि पर्यावरणीय संकट, जलवायु परिवर्तन, हिंसा, युद्ध, सांस्कृतिक संघर्ष, मानसिक संघर्ष, उपभोक्तावाद, सामाजिक असमानता, मानवीय संबंधों का क्षरण। इन समस्याओं का समाधान किसी एक ज्ञान परंपरा के पास नहीं है, इसलिए हमें विभिन्न ज्ञान परंपराओं के संवाद की आवश्यकता है। भारतीय ज्ञान परंपरा इस वैश्विक संवाद में महत्वपूर्ण योगदान देती है। यहाँ एक सावधानी भी अत्यंत आवश्यक है। भारतीय ज्ञान परंपरा का अध्ययन केवल गौरवान या गौरवगान में नहीं बदलना चाहिए। परंपरा का सम्मान आवश्यक है, लेकिन आलोचनात्मक विवेक भी उतना ही आवश्यक है। किसी प्राचीन ग्रंथ में आधुनिक विज्ञान की प्रत्येक खोज पहले से मौजूद थी। इस प्रकार के अतिशयोक्तिपूर्ण दावे गंभीर ज्ञान अध्ययन को कमजोर कर सकते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा का वास्तविक सम्मान तभी है जब उसका अध्ययन प्रमाण, मूल ग्रंथों, इतिहास, तर्क और आलोचनात्मक विवेक के आधार पर किया जाए। भारतीय ज्ञान परंपरा या फिर भारतीय परंपरा स्वयं प्रश्न, शास्त्रार्थ और वाद विवाद की परंपरा रही है। अतः प्रश्न करना भारतीय ज्ञान परंपरा का विरोध नहीं, बल्कि उसकी जीवंतता का प्रमाण है। अब हम ये देख सकते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा तुलनात्मक विश्व साहित्य के क्षेत्र में विश्व के अध्ययन या फिर कह सकते हैं कि वे तुलनात्मक विश्व साहित्य के क्षेत्र में विश्व के जो अध्ययन की कौन कौन सी दिशाएं हो सकती है। पहली दिशा है तुलनात्मक काव्य शास्त्र, हो सकती है। फिर दूसरी दिशा हो सकती है तुलनात्मक ज्ञान मीमांसा। तीसरी दिशा हो सकती है तुलनात्मक व्याख्या मीमांसा। चौथी हो सकती है तुलनात्मक मिथक अध्ययन। आगे ऐसी कई तरह की जो है, इसी प्रकार और भी हो सकते हैं, जैसे मौखिक इतिहास, तुलनात्मक सौंदर्य शास्त्र। भारतीय करुणा, अहिंसा, सह अस्तित्व और वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणाओं को विश्व के मानवीय साहित्य के साथ इस प्रकार जोड़ा जा सकता है। तुलनात्मक अध्ययन करते समय एक सिद्धांत हमेशा याद रखना आवश्यक है। तुलना का उद्देश्य श्रेष्ठता सिद्ध करना नहीं। यदि हम केवल यह सिद्ध करने के लिए तुलना करें कि हमारी परंपरा दूसरी परंपरा से श्रेष्ठ है, तो तुलनात्मक साहित्य का मूल उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा। तुलना का उद्देश्य समझना है, दूसरे को उसकी अपनी सांस्कृतिक भूमि में समझना, अपनी परंपरा को भी नए दृष्टिकोण से देखना, समानताओं को पहचानना, भिन्नताओं का सम्मान करना और इन दोनों के बीच नए ज्ञान की संभावना उत्पन्न करना। यही तुलनात्मक विश्व साहित्य की वास्तविक आत्मा है।
बहुभाषी भारत स्वयं तुलनात्मक साहित्य की एक विशाल प्रयोग भूमि है। यहाँ अनेक भाषाएं, बोलियां, साहित्यिक परंपराएं, आस्थाएं और सांस्कृतिक स्मृतियां एक साथ उपस्थित हैं। एक ही कथा विभिन्न भाषाओं में अलग रूप धारण करती है। एक ही धार्मिक आंदोलन विभिन्न क्षेत्रों में अलग साहित्यिक अभिव्यक्ति प्राप्त करता है। भक्ति साहित्य इसका उत्कृष्ट उदाहरण भी है। बंगाल की वैष्णव परंपरा, उत्तर भारत की निर्गुण भक्ति, महाराष्ट्र की वारकरी परंपरा, तमिल अलवार और नैनार परंपरा, कर्नाटक की वचन परंपरा, ऐसे इन सब को साथ रखकर देखा जाए तो भारत स्वयं एक बहुवचनात्मक साहित्य संसार दिखाई देता है। इसलिए विश्व साहित्य की तुलना केवल भारत और पश्चिम के रूप में नहीं की जानी चाहिए। भारत के भीतर भी अनेक साहित्यिक संसार हैं। आगे भारतीय ज्ञान परंपरा और विश्व साहित्य के संदर्भ में बंगाल का भी एक विशेष महत्व है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ ठाकुर, काजी नजरुल इस्लाम, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, विभूतिभूषण बंदोपाध्याय, जीवनानंद दास, महाश्वेता देवी और अनेक अन्य रचनाकारों ने स्थानीय अनुभवों को व्यापक मानवीय प्रश्नों से जोड़ा। बंगाल पुनर्जागरण स्वयं भारतीय और आधुनिक विश्व बौद्धिकता के बीच संवाद का महत्वपूर्ण उदाहरण है। रविंद्रनाथ के साहित्य में उपनिषद, वैष्णव परंपरा, बाउल चेतना, प्रकृति, आधुनिकता और विश्व मानवता या विश्व मानववाद एक दूसरे से संवाद करते दिखाई देते हैं। इसलिए बंगाल तुलनात्मक विश्व साहित्य के अध्ययन के लिए भी एक अत्यंत समृद्ध क्षेत्र है। शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा की भूमिका पर ध्यान दे तो यहाँ ये कहा जा सकता है कि समकालीन शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा को शामिल करने का अर्थ केवल प्राचीन ग्रंथों को पाठ्यक्रम में जोड़ देना नहीं। विद्यार्थी को परंपरा को समझना चाहिए, उस पर प्रश्न करना चाहिए, उसकी ऐतिहासिकता को पहचानना चाहिए, उसे आधुनिक ज्ञान के साथ संवाद में रखना चाहिए और विश्व की अन्य ज्ञान परंपराओं के साथ उसकी तुलना करनी चाहिए। इस दृष्टि से भारतीय ज्ञान परंपरा तुलनात्मक विश्व साहित्य एक दूसरे के स्वाभाविक सहचर हैं। एक हमें अपनी बौद्धिक जड़ों की पहचान देता है तो दूसरा हमें विश्व की विविध ज्ञान परंपराओं के प्रति खुला बनाता है। अतः भारतीय ज्ञान परंपरा और तुलनात्मक विश्व साहित्य का संबंध मूलतः संवाद का संबंध है। भारतीय ज्ञान परंपरा हमें बौद्धिक और सांस्कृतिक जड़ों से परिचित कराती है। तुलनात्मक विश्व साहित्य हमें ये सिखाता है कि हमारी जड़ें चाहे जितनी गहरी हो, हमारी दृष्टि विश्व के लिए खुली रहनी चाहिए। हमारी परंपरा महत्वपूर्ण है किंतु अन्य परंपराएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। हमारे प्रश्न विशिष्ट है किंतु मनुष्य के कुछ मूल प्रश्न सार्वभौमिक भी है। प्रेम क्या है, दुख क्या है, न्याय क्या है, मृत्यु क्या है, सत्य क्या है, प्रकृति के साथ हमारा संबंध क्या है, समाज में मनुष्य की गरिमा कैसे सुरक्षित रहे। ये प्रश्न वाल्मीकि से लेकर शेक्सपियर तक, कबीर से रूमी तक, महाभारत से ग्रीक महाकाव्यों तक, प्रेमचंद से विश्व के सामाजिक यथार्थवादी साहित्य तक अनेक रूपों में उपस्थित है। तुलनात्मक विश्व साहित्य हमें इन प्रश्नों के बीच संबंध खोजने की क्षमता देता है। भारतीय ज्ञान परंपरा हमें इन प्रश्नों को देखने की अपनी विशिष्ट दृष्टि देती है और दोनों का संगम हमें अधिक व्यापक, बहुलतावादी और मानवीय ज्ञान की ओर ले जाता है। आज जब दुनिया अनेक प्रकार के विभाजनों से गुजर रही है, तब साहित्य की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। साहित्य हमें दूसरे के दुख में प्रवेश करना सिखाता है। साहित्य हमें दूसरे की भाषा सुनना सिखाता है। साहित्य हमें अपने अनुभव से बाहर निकलकर दूसरे मनुष्य के अनुभव तक पहुंचने की क्षमता देता है। और भारतीय ज्ञान परंपरा हमें ये स्मरण कराती है कि ज्ञान का वास्तविक उद्देश्य विभाजन नहीं, समन्वय है। अतः ये कहा जा सकता है कि हम अपनी परंपरा को जानें लेकिन स्वयं को उसमें बंद न करें। हम विश्व की ओर बढ़ें लेकिन अपनी जड़ों से कटकर नहीं। हम अन्य संस्कृतियों को पढ़ें लेकिन उन्हें अपने सांचे में ढाल कर नहीं। हम तुलना करें लेकिन श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए नहीं। हम संवाद करें ताकि ज्ञान का विस्तार हो।
और हम साहित्य को केवल पाठ्यक्रम का विषय न माने बल्कि मनुष्य और मनुष्य, संस्कृति और संस्कृति तथा सभ्यता और सभ्यता के बीच सेतु के रूप में देखें। अंततः मैं यही कहना चाहूंगी कि भारतीय ज्ञान परंपरा हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है। तुलनात्मक विश्व साहित्य हमारी दृष्टि को विश्व तक विस्तृत करता है और दोनों का समन्वय हमें ऐसी ज्ञान दृष्टि प्रदान कर सकता है जिसमें बहुलता भी है, संवाद भी है, संवेदना भी है और समस्त मानवता के कल्याण की कामना भी। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अंत में मैं हिंदी विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति प्रोफेसर नंदिनी साहू मैडम के प्रति पुनः हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ और इस व्याख्यान के सफल आयोजन में तकनीकी सहयोग प्रदान करने वाली तकनीकी टीम, हिंदी विश्वविद्यालय की तकनीकी टीम के प्रति भी मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। साथ ही आदरणीय प्राध्यापकगण, विद्यार्थियों और साहित्य प्रेमियों का विशेष धन्यवाद जिन्होंने मेरे विचारों को इतने धैर्य और आत्मीयता से सुना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।